Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Dear student, today I am going to start a new paragraph for CTET examination. So see this direction. The direction is question number 144 to 150. Read the passage given below and answer the question that follow by selecting the correct most appropriate options. मीन्स यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसे पढ़ के आपको आंसर देना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. द कित्तूर फोर्ट. दिस इज़ द फोर्ट. दिस लाइन्स अबाउट द फोर्ट. मतलब ये कित्तूर फोर्ट के बारे में है, कित्तूर किला के बारे में है. सो इसे हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसको हिंदी में समझेंगे और फिर इसका आंसर देंगे. One can see today only the dilapidated walls and ruins of the great fort which was once known for its strength. The most important landmark as one goes toward the fort in the Bahadurgarh, situated to the southwest of the fort and outside of it, on a natural hillock, the highest in the plain, the Bahadurgarh, which was watchtower, provides a most panoramic and commanding view of the sparsely wooded surrounding region of green grassland, fading as in gradually into soft contoured hills in the west and the horizons of the other sides. To the north of the toward the Rangatikere, where Rani Chennamma fought her last stubborn fight against the British with almost savage determination. The actual fort, circular in plan, consists of double walls spread by moats on the outer side, with semicircular bastion on the exterior of the outer wall. It had originally the main gateway on the east, approached by the causeway across the outer moat known as the Honda, which was used for bathing the elephants. The entrance thoughts that through that the walls are deliberately non-alleged, evidently in the interest of security. After passing by the winding path through the walls out in the late to the fort side of the imposing main entrance of the palace, located near the northern arc of the inner wall. To the south of the palace, inside the fort, are the ruins of horse stables and foundation of residential buildings, probably meant by the important official of the palace. To the southwest in the heavily built watchtower, relieved by a series of parallel buttress and regular intervals. दिस इज़ द ऑल अबाउट द कित्तूर फोर्ट. ये कित्तूर फोर्ट के बारे में बता रहा है कि कह रहा है राइटर कि जब आप इसके जीर्ण हो गए दीवार पे चढ़ के देखोगे, यानी कि ये अब बहुत पुराना हो चुका है, तो वहाँ से कह रहा है कि अगर आप चढ़ के देखोगे तो आपको उसके अंदर एक हरा भरा घास का मैदान दिखेगा जो कि पहले हुआ करता था. मतलब ये कह रहा है कि अभी जो जीर्ण शीर्ण हो गया है दीवार, उस वॉल के टेरिस पे अभी खड़े होके देखो तो उस टाइम लगता है कि वहाँ पे एक ग्रीन ग्रास होगा, और वहाँ पे उसी ग्रीन ग्रास और लैंडमार्क के बीचों बीच में एक जगह है जिसका नाम क्या है, बहादुरगढ़, situated to the southwest of the fort and outside of it. ये जो कित्तूर फोर्ट है उसके साउथ वेस्ट साइड में बहादुरगढ़ सिचुएटेड है. ऑन अ नेचुरल हिलॉक द
हाईएस्ट इन द प्लेन द बहादुरगढ़ विच वॉज द वॉच टावर। और वो बहुत ही ऊंचाई वाला है, जैसे कि लगता है वो क्या है, वॉच टावर है। मतलब वहाँ से वॉच टावर का मीन्स होता है दुर्ग, मतलब आप उस पर चढ़ के, और पहले ऐसा होता था कि महलों में दुर्ग बनाए जाते थे आउटर साइड में, जिससे कि पता चले कि दुश्मन आने वाले हैं कि नहीं। वहाँ से जो मंत्री होते थे वो देखा करते थे, मतलब इसीलिए उसे वॉच टावर कहते हैं। Provides the most panoramic and commanding views of especially wooden surrounding region green grassland। और वहाँ से वो लोग वॉच करने के लिए उस दुर्ग का निर्माण किए थे। Fading as gradually into soft controlled hills the west of horizon of the other side। और अदर साइड पश्चिम की तरफ बहुत सारे घास के मैदान थे, बहुत लंबा चौड़ा जगह था जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, मनोरम दिख रहा था। टू द नॉर्थ ऑफ द टूर इज राना गतिकेरे, ये इसको रणगतिकेरे कहेंगे, वेयर रानी चेन्नम्मा फॉट हर लास्ट स्टबर्न फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश विथ ऑलमोस्ट सेफ डिटर्मिनेशन। यह कह रहा है कि उसी के पश्चिम साइड में, उसी कित्तूर फोर्ट के पश्चिम साइड में एक जगह है जिसका नाम है रणगतिकेरे। रणगतिकेरे से जो वहाँ की रानी थी, रानी चेन्नम्मा, जो कि ब्रिटिश से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ाई की थी और अपने दुर्ग को बचाया था उन्होंने। द एक्चुअल फोर्ट सर्कुलर इन अ प्लेन कंसिडर ऑफ डबल वॉल्स separated by moat on the outer sides with semi-circle bastions or the exactor of the outer wall. It had originally the main gateway of the east। वो बता रहा है कि किस तरह से मेन गेट था, बहुत ही भारी भरकम सा, और हर साइड में कुछ न कुछ बना हुआ था। Approach by the causeway across the outer moat known as honda which was used for bathing the elephant। उधर ही एक साइड में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना था जो कि उसको होंडा वहाँ पे कहा जाता था। और होंडा जो था वो किस लिए था, तो बाथिंग द एलिफेंट, मतलब वो एलिफेंट्स के नहाने के लिए वो एक जगह बनाया गया था बहुत बड़ा सा, जहाँ पे हाथियाँ स्नान करती थी। द एंट्रेंस थ्रू द वॉल्स द deliberated not elegant evenly in the interest of security after passing by the winding path through the walls। उस दुर्ग के किनारे किनारे बहुत ही चौकसे सेनानियों को खड़ा किया जाता था जो कि उसका देखभाल करते थे, उस दुर्ग का, कित्तूर किले का। One is laid to the front side of the imposing main entrance of the palace located near the northern edge of the inner fort wall। और इस तरह से वो दुर्ग के चारों तरफ से किस तरह से एंट्रेंस बनाए गए थे, ये सारा उसके बारे में बता रहा है। टू द साउथ ऑफ द पैलेस इनसाइड द फोर्ट आर द रेंज ऑफ हॉर्स स्टेबल एंड फाउंडेशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। वहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स भी हैं, और वहाँ पे हॉर्स स्टेबल भी है, मतलब एक तरफ अस्तबल है। पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि किला वगैरह में हुआ करता था कि बहुत भारी भारी गेट होते थे, 6-7 गेट होंगे एक महल में, बहुत सारे इमामबाड़ा होते थे, दुर्ग होते थे, उसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े गेट बनाए गए थे। ऐसा करके वो सारा कित्तूर किले के बारे में राइटर यहाँ पे बता रहा है। So now see the question related to it। So see the question number 144, which one of the following statement is true। इन चारों में से कौन सा सही है। From it one can enjoy a view of the hills in the east। It was used a watchtower। रानी चेन्नम्मा rules कित्तूर from here। बहादुरगढ़ इज सिचुएटेड इनसाइड द कित्तूर। तो इसमें सबसे राइट आंसर हो जाएगा इट वॉज यूज एज वॉच टावर। अभी किस लिए उसका यूज होता है, वॉच टावर के लिए उस किले का यूज होता है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी चेन्नम्मा फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्यों लड़ी, मतलब वो रानी चेन्नम्मा लड़ी थी ब्रिटिश से, कहाँ से, इन द कंट्रोल हिल्स एट रणगतिकेरे इन बहादुरगढ़। तो आपको पता है कि यहाँ की रानी थी वो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, फ्रॉम बहादुरगढ़ वन कुड ईजली
गेट आप बहादुरगढ़ में और क्या इजली पा सकते हैं। तो अ लुक एट ग्रीन ग्रास लैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रास लैंड है इस समय। 147 Unalize get it walls, make the fort source, make the fort insert, make the walls looking in box, make the entry easy। क्या होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा make the walls foam imposing। नेक्स्ट गैप है यहाँ पे, यहाँ पे गैप है आपको, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ गैप दिया है और क्या है, एज वन गोज टूवर्ड्स वन इज़ द अबव क्लास इज एन, मतलब यहाँ पे वन किसको क्या है, इसमें वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है कि नाउन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई से मतलब एज वन गोज टूवर्ड, जैसे कोई वहाँ जाता है तो कोई किसको कहा गया है, प्रोनाउन को, क्योंकि नाउन के बदले जिसका यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो वन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप है एंड कमांडिंग व्यूज ऑफ, कमांडिंग इज इन एबव फ्रेज इज ए, मतलब यहाँ पे कमांडिंग क्या है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है। तो इसमें हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण, मतलब कमांडिंग करना क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बताना हो जाएगा। द वर्ड लैंडमार्क मीन द सेम एज, मतलब लैंडमार्क का मतलब क्या हो जाएगा, मार्कर। सो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। ऐसे ही पैराग्राफ को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।